والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام جامعہ اسلامیہ نیلفناح کے عنوان پر آپ کے گاؤں میں میری دوسری حاضری ہے۔ جناب نعمان بھائی نے یہ کہہ کر کے دعوت دی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے بعد بنات کا مدرسہ شروع ہوا ہے۔ بچوں نے مکالمے، تقریر اور تلاوت کا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے، اور دراصل آج کا یہ پروگرام بچوں ہی کے نام پر ہے، بلکہ کہا جائے بچوں کے نام پر ہے۔ ہم لوگوں کی حاضری بچوں کی نسبت پر اور اس ادارے کی زیارت اور آپ کی دعا لینے کے لیے یہاں ہوئی ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ گھوڑا گھاٹ کے عوام، جناب مولانا فرقان صاحب غزالی، جنہوں نے اپنے گاؤں کا انتخاب کیا ہے۔ اور سچ بات یہی ہے کہ آدمی مولوی ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، دین کے علم میں گہرائی و گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ۔ گھوڑا گھاٹ سے جناب مولانا فرقان صاحب مظاہری یا مولانا معین الدین صاحب مظاہری یا مولانا شمشاد صاحب قاسمی یا جتنے علماء ہیں، الحمدللہ اس چھوٹی سی بستی میں علماء کرام کی ایک وسیع تعداد موجود ہے۔ یہ لوگ گئے تھے، مذاہب لوگ گئے، دارالعلوم دیوبند گئے، ندوہ گئے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پورا گاؤں کو مدرسے میں جا کے ایڈمیشن نہیں لے سکتا ہے۔ اب بوڑھے ہیں، کچھ لوگ کھیتی کسانی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دکاندار ہیں، کچھ لوگ ملازمت میں ہیں۔ سارے لوگ ایک ساتھ جا کر دارالعلوم دیوبند یا مظاہر میں ایڈمیشن تو نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ جائیں، جا کر کے دین کا گہرا علم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ادارہ یہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ فاضل ہیں ہمارے یہاں سے، انہوں نے علم دین پر پی ایچ ڈی کر لی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک بنیادی تعلیم تو سب کے لیے فرض ہے، مسلمان مرد اور عورت سب کے لیے فرض ہے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، تاجر ہو یا ملازم ہو، لیکن ایمان والے کا بچہ ہے، ایمان والے کی بچی ہے، اس پر دین کا بنیادی تعلیم، حلال و حرام، شرعی احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، کاروبار کے لائن سے، کھیت کھلیان کے لائن سے، زندگی کے جو مسائل ہیں برتنے والے، ان کے تعلق سے، یہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا علم رکھنا ہر مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے،
وہ فرض ہے، لیکن مولوی بننا، مفتی بننا، قاضی بننا اور علم میں گہرائی پیدا کرنا، پی ایچ ڈی کرنا، جا کر وہاں بخاری شریف مکمل کرنا، صحیح ستہ مکمل کرنا، ان کے ترجمے کو پڑھنا، حدیثوں کے تخریج کو معلوم کرنا، یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ جنہوں نے کیا ہے ان پر ایک فرض اور ہے، جنہوں نے آگے کا مسئلہ، آگے کا مرحلہ پورا کیا، دارالعلوم دیوبند میں مظاہر میں جا کے سند فضیلت انہوں نے حاصل کی اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو گاؤں میں پلٹنا چاہیے اور گاؤں کی فکر کرنا چاہیے، اور اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں والوں کی انہوں نے روٹیاں کھائی ہیں۔ یہاں پہ کسی نے جو ہے، کسی بوڑھی عورت نے ان کے چہرے پہ تیل ملا، کسی نے اس کو کاجل لگایا، کسی نے اس کو ٹکا لگا دیا۔ پہلے ٹکا وغیرہ سب لگایا جاتا تھا، آج کل تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔ اور پورا گاؤں جو ہے انہوں نے پیار کیا ہے، پورے گاؤں نے اس بچے کو کہ یہ بچہ ہمارا لاڈلا ہے، پیارا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کا فرض یہ ہے کہ اپنے گاؤں کی فکر کرو۔ الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں یہاں سیلاب اور یہاں پہ ہر طرح کی دشواریوں کا بھی معاملہ ہے، لیکن ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ادارہ شروع ہوا ہے جو بچوں کی تعلیم کے لیے، اور اس 6 مہینے کے اندر ہماری بچیاں برجستگی کے ساتھ مسائل کو سامنے رکھ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ لیکن اسلام اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کے ذہن کے اندر شادی کا خیال پیدا ہو، اس وقت سے وہ اس چیز کو ملحوظ رکھے کہ ہمارا بچہ دیندار ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے، جیسے کسی کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کہے کہ ہمارے گھر میں عقیقہ ہو رہا ہے، آپ کو دعوت ہے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل آدمی ہے، ابھی شادی ہی نہیں کیا۔ ایک صاحب تھے، وہ بار بار ایک مولانا ان کے گاؤں میں آتے تھے، مولانا سے وہ گزارش یہ کرتے تھے کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ صاحب اولاد کا مطلب میں بال بچہ والا ہو جاؤں۔ کئی مرتبہ انہوں نے گزارش کی، حضرت تیسری مرتبہ آئے تو کہا کہ دیکھو تو تیسری مرتبہ میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آدمی آیا ہے اور یہی دعا کرانے کے لیے وہ حاضر ہوا کہ حضرت دعا یہ کیجئے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ حضرت نے اپنے مرید خاص سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ آدمی اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، تہجد میں بھی دعا کیا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ہے حضرت یہ آتے ہیں صرف دعا کرانے کے لیے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، اس کی شادی ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو جس کی شادی نہ ہو اس کے گھر میں بچے کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے بچہ تو نازل نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے سیکھنے کا معاملہ شروع ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ ماں کی گود سے ہوگا، اور کہاں تک ہوگا؟ قبر کی گود تک ہوگا۔ من المہد الی اللحد، اطلب العلم، سیکھنے کا کام شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرو گے لوگوں؟ ماں کی گود سے شروع کرو گے، اور قبر کی گود میں جانے سے پہلے تک سیکھنے کا سلسلہ کام شروع رہے گا۔ چاہے وہ آدمی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، لیکن ایمان والا ہے، آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عمر 70 سال کی ہو گئی ہے، اب میری عمر ختم ہو گئی ہے، سیکھنے کا معاملہ بند ہو
गया है, नहीं। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीवाने हैं, चाहे उनकी जिंदगी को तो पढ़िए। वो किसान है, वो कारोबारी है, वो पल्ला है, वो खजूर की टहनियों पे लटक रहे हैं, वहां से खोसा निकाल कर नर और मादे के खजूर में मुंतकिल कर रहे हैं, बाद में सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन फिर वहां से उतरने के बाद डायरेक्ट किधर जाते हैं? आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस रोजाना लगती थी। सुफ़ा ये मदरसा है, जहाँ पे रिवायतों में आता है कि वहाँ कभी कभी 250-250 लोगों का मजमा होता था। वैसे अल्लाह के रसूल का मालूम यह है, मंसूर नबी के अंदर रोजाना 8 का हल्का लगता था। किसी हल्के में जिक्र वाले बैठे हुए हैं, फिक्र वाले बैठे हुए हैं, किसी हल्के में तालीम और ताल्लुम का सिलसिला है। खुद आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू के जरिए इल्म को मुंतकिल करते थे और कहते थे कि लोगों ये अमानत है, इस अमानत को तुम्हें मुंतकिल करना है। जो मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है और ये कर्ज है। वो मसला मालूम हो चुका है, उसको इसकी कैफियत मालूम हो गई है, नौयत मालूम हो गई है। अब वो आदमी का फर्ज है कि वो इस मजलिस से उठेगा, जो उसका भाई खेत में रह गया है, जो भाई बाजार में था, उसके अंदर मुंतकिल करना है। इस तरह की बारियां भी लगी हुई थी। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आपने मुआखात करवाई है। कुरान ने एहसान को बतलाया भी, वज़कुरू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अरे अल्लाह का एहसान तो याद करो, तुम लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, मार रहे थे, और तुम लोगों को ऐसा इस्लाम ने भाई बनाया कि खूनी भाई जिस मुकाम को नहीं पहुंच सकता है, उस मकाम से आगे तुम तरक्की कर गए हो। यहाँ तक कि एक भाई अगर प्यासा है, दूसरे की प्यासे भाई की कराहने की आवाज आती है तो पानी को अपने मुंह से नहीं लगाता है, वो इशारा करता है जरा मेरे उस भाई की तरफ पानी का जाम लेकर जाओ। और इस तरह का मामला 3 दिन के पास होता है, तीनों की सांस बंद हो जाती है, लेकिन उन्होंने पानी का उस गिलास को, उस जाम को, उस झाड़ के, उस बर्तन को अपने हृदय से लगाना, जान के जाने के हवाले कर दिया, इसलिए कि उनको अपने भाइयों का कौन से भाई थे? या घोड़ा घाट के अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल जलील साहब दोनों सगे भाई हैं? नहीं लोगों, वो दोनों, एक कोई अंसार है, अंसारी है, और कोई मुहाजिर है। अल्लाह के रसूल ने दोनों को भाई बनाया। और कुरान ने कहा कि लोगों, दुनिया की तारीख का मुताला करने वालों, दुनिया की तारीख को पढ़ने वालों, जरा मदीने की उस मजलिस को देखो, उस मैदान को देखो, उन घरों को देखो कि हमने अपने इस्लाम की बरकत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बरकत से क्या इनकलाब बर्पा कर दिया है कि दोनों खूनी रिश्ते से ज्यादा एक दूसरे की कद्र करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये तालीम की बरकत है, ये अमानत है। इसीलिए कहा कि जिब्रील अमीन क्यों कहा जाता है? जिब्रील अमीन, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास रुपया था, बैग था उनका, घोड़ा घाट वालों का थैला था उनके पास, गोल्ड था, जेवर था। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह के पास से जो इल्म है, ये सबसे बड़ी अमानत है, सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है, उसकी आपने हिफाजत की है। उसमें न एक लफ्ज बढ़ाया है, न एक लफ्ज घटाया है। आपने उसी तरह जो अल्लाह के पास मिला है, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के पास पहुंचाया है। अच्छा, ये शमशाद साहब ये लोग और मोइनुद्दीन साहब ये लोग यहाँ प्रोग्राम में जुमे के खिताब में आप लोगों से कहते हैं कि लोगों बाजार मत जाओ, बाजार बदतरीन जगह है और मस्जिद बेहतरीन जगह है। ये हदीस है आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के रसूल ने कहा, खैरुल अमाकिन मसाजिदुहा, बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं और बदतरीन जगह शर्रुल अमाकिन अस्बाकुहा,
दुनिया में सबसे बदतरीन जगह बाजार है। शैतान का जादू और झमेला, झगड़ा, हर तरह की धोखाधड़ी का मामला बाजार में होता है। शैतान वहां गालिब होता है और मस्जिद में आकर मगलूब हो जाता है। वहां वो नेतागिरी करता है, मस्जिद में आकर जलीलो खार हो जाता है। वहां उसका जलवा है और यहाँ पे उसका हलवा निकल जाता है शैतान का। तो इस रिवायत के बारे में शान नुज़ूल, जिस तरह कुरान शरीफ की आयतें जो नाजिल हुई है मौके मौके पर, उलमा किराम बतलाते हैं इस आयत की शान नुज़ूल ये है। उसी तरह इस हदीस का भी पसे मंजर, जिसको बैकग्राउंड कहते हैं, अल्लाह के रसूल से पूछा था किसी ने, अल्लाह के रसूल बतलाइए कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे बुरी जगह कौन सी है। तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मुझको मालूम नहीं है। क्या कहा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? मुझको मालूम नहीं है। अरबी में उसको लादरी कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा लादरी, मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, आज की तारीख में अगर घोड़ा घाट में कोई मसला मुनीर साहब से पूछ ले और कहे कि हमको मालूम नहीं है, कहे कि ये गया है खाली रोटी तोड़ के आया, यही ना कहा जाएगा, रोटी तोड़ा, बाप के पैसे को जो है बर्बाद किया। कौन सी का मौलवी है? कहता है कि नहीं मालूम। हम लोग के पास जो फतवा आता है हम लोग रख लेते हैं, कहते हैं कि कल देंगे, और बोलता है और किताब देखिएगा मुफ्ती साहब। हमने कहा हाँ, किताब दे करके आपको देंगे। यही तरबियत है, यही ट्रेनिंग है। हजरत हकीमुल उम्मत हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उससे बड़े आलिम कौन है? बेहश्ती ज़ेवर किसने लिखी है? बेशुमार किताबों के मुसन्निफ। उन्होंने एक मसले में फतवा लिख करके दे दिया, गलती हो गई, हजरत जो है बिल्कुल आप परेशान है। उन्होंने नमाज शुरू कर दी है, अल्लाह जिस आदमी को मसला लिख के दिए हैं, अल्लाह उस आदमी को भेज दीजिए, घोड़ा घाट भेज दीजिए उसको जल्दी से। वो दौड़ता हुआ आया, हजरत ने मसला लिया, उसको ठीक किया, उसके बाद दे दिया। निजाम बनाया, मामूल बनाया कि किसी को लगे हाथ फतवा नहीं देंगे। मसला तो खैर उसी वक्त बताइए, लेकिन फतवा का मसला लगे हाथ नहीं देना है। और उसमें भी आदमी जो फतवा देता है उसमें लिखता है, आखिर में क्या लिखता है? पढ़े हैं कभी कोई फतवा? वल्लाहु आलम। अरे भाई, वल्लाहु आलम आप लिख रहे हैं, अल्लाह जानता है। आज सब मसले का हल जो है उन्होंने बताया कि ये मसला ये है, इसमें जो है तलाक वाक़ई हो गई है, सब कुछ बता दिया। लेकिन ये बतलाया कि इल्म तो खास सिफत खुदा की है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस मौलवी को अपने इल्म का दावा नहीं है, इल्म पर नाज नहीं है। ये इल्म किसकी सिफत है? अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मिट्टी से उनको बनाया था। फरिश्तों को बड़ी हैरत हो रही थी, ये मिट्टी से आदमी को बनाया है, हम तो नूर से निकले हैं। शैतान इसीलिए गुमराह हो गया। फरिश्ते को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और ताअत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला के सामने फरिश्तों ने एतराज भी किया कि अल्लाह इसको पैदा कर रहे हैं, ये लोग तो जाकर के घोड़ा घाट में बहुत ज्यादा बदमाशी करेंगे, बहुत फसाद फैलाएंगे, फॉरेक्स का मामला भी चलेगा, सूदी कारोबार भी चलेगा, और झगड़ा झुट्टी भी चलेगी, सियासत भी करेंगे। और आप इबादत के लिए, तो इबादत के लिए तो हम काफी हैं। अल्लाह ताला ने अल्लाह ने अपना इल्म मुंतकिल किया और कहा ये फरिश्ता तो खलीफा बनना चाहता है, तेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो इस मिट्टी के पुतले के अंदर ताकत है। मैंने अपनी रूह फूंकी है और मैंने अपनी अमानत मुंतकिल की है, वो अमानत इल्म की है। ये ऐसी ताकत है जो इंसान फरिश्तों से ऊपर मेराज में आका नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह चले गए जहां जिब्रील अमीन नहीं पहुंच सके। ये अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और अपनी अमानत इल्म की उनके अंदर मुंतकिल की और फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो, इसलिए कि आदम को सजदा करना नहीं है, दरअसल वो अल्लाह को सजदा करना था, इसलिए कि खुदा की सिफत उधर मुंतकिल हो रही है।
یہ مسئلہ تھوڑا نازک ہو جائے گا، اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں خدا کا حکم تھا کرنا ہے تو کرو، اور وہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کا۔ وہاں پہ قیل و قال کی گنجائش نہیں تھی، جس نے قیل و قال کیا وہ ہلاک ہوا، مردود ہوا، اس کا نام شیطان پڑا، وہ رجیم ہوا، قیامت تک کے لیے وہ مردود، اس پہ لعنتیں پڑھی جائے گی۔ لوگوں تو یہ علم جو ہے کسی مولوی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ یہ چیز منتقل ہوتی آئی ہے، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی، حضرت جبریل امین کے واسطے سے آئی اور مجھ تک آئی، لیکن یہ دولت، یہ طاقت، یہ امانت تو خدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص صفت ہے۔ انسان کو مرتبہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک ذرہ علم کا منتقل کر دیتا ہے تو انسان دنیا کے اندر بھی مکرم ہو جاتا ہے۔ وہ اشرف مخلوقات اسی لیے ہے، اور اللہ کا خلیفہ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو منتقل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار سوال ہو گیا تھا کہ بھائی سب سے زیادہ کون جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی یہ وقت ہے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ صحیح بات یہی ہے کہ نبی اپنے وقت خدا سے جڑا ہوتا ہے، اور وہ نبی جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا تھا وہ تو کہنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوئی اور کہا کہ جاؤ ندی کے کنارے چلے جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن وہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اس کو ہم نے علم کا سمندر دیا ہے، جاؤ وہاں دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اصل میں ان کو یہ بتلانا تھا کہ یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور پھر آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جتنی امانتیں دی ہیں، اللہ کے رسول آخری نبی تھے، حضرت جبریل امین کے ذریعے سے بھی ہے۔ حضرت جبریل امین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ امانت منتقل کی۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا بہترین جگہ کون سی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین نے بھی کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین پھر اللہ سے معلوم کر کے آئے، اس امانت کو اللہ کے رسول تک منتقل کیا، اور اللہ کے رسول نے آج پوری دنیا 1400 سال پہلے منتقل کیا، اور اس ندی کے کنارے اور کچے پکے مکان میں یہ علم منتقل ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ اس مکتب سے یہ علم کا دریا جاری ہوگا۔ اس کی حفاظت فرمائے اور علم کی تبلیغ اور اشاعت کا قرآن کے پیغام کو اکثر کرنے کا ذریعہ بنائے۔ کہیے آمین۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لفظ بھی قرآن نے کہا کہ اگر آپ ملاتے تو آپ کی گرفت ہو جاتی۔ تو حضرات یہ مسجدوں کا مقام، مسجدوں کا رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ زور سے بولیے۔ جتنی مساجد ہیں سب کا رشتہ جڑا ہوا ہے خانہ کعبہ سے، اور ساری مسجدوں کے بارے میں یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ جنت ہے، جنت کی جگہ ہے، ساری مسجدیں ملا دی جائیں گی اور اس کو جنت میں داخل کی جائیں گی۔ جس طرح قرآن اس کو فنا نہیں ہے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، قرآن بھی جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو بھی فنا نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد اور یہ مدرسے کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا گھر ہے، یہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کا رشتہ صفہ نبی سے جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ دار ارقم سے جڑا ہوا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں میں بچوں کی تعلیم کا ادارہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ترقی اور اس ادارے کو ہدایت بد سے بچائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہ کھڑا ہے کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے خواتین کے بارے میں، اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں، اسلام پر حملہ ہے، سب خواتین کے عنوان پر ہی اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہو رہی ہے، جبکہ اسلام کو اسلام کی تبلیغ بھی ہے،
इस्लाम को मकाम मिला है, इस्लाम को उरूज मिला है, इस्लाम को बुलंदी मिली है, इस्लाम को तक़वियत मिली है, और लोग जूझ बरजूझ इस्लाम में यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जो इस्लाम में दाखिल हुए हैं, इस अमन के मजहब को गले लगाया है। इसमें खवातीन पर जो जुल्म और ज्यादती होती थी, खवातीन के साथ जो नाइंसाफी होती थी, खवातीन के साथ जो दोहरा सलूक होता था, जो उस वक्त की तहजीब खवातीन को आधी रूह या शैतानी रूह का मालिक इंसान कहा करती थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो खवातीन को मानते ही नहीं थे कि ये इंसान है। खुद अरब के अंदर आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, वहां खवातीन के साथ मामला ये होता था कि बेटियों की पैदाइश पर इंसान का चेहरा जल्ल वजहु मुस्वद्दा, और उनका चेहरा स्याह पड़ जाता था। आदमी के लिए ये आर की बात थी, शर्म की बात थी कि मैं किसी का ससुर हो जाऊं और वो हमारा दामाद हो जाए, वो हमको कहे ससुर मियाँ क्या हाल है, ये चीज आर की बात थी। वो इस आर से बचने के लिए अब बच्ची की पैदाइश के बाद बच्चों को जिंदा दरगोर कर देते थे। ऐसे लोग कसीर तादाद में थे। कुछ कबीलों में ये बीमारी बहुत ज्यादा आम थी। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई और कहा, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस सरजमीन पर भेजे गए हैं जहां खवातीन के साथ ये नाइंसाफी होती है कि उसके वजूद को भी खत्म किया जा रहा है, उसको कब्र में जिंदा गाड़ दी जा रही है, यहाँ इनकलाब बर्पा करना है, इस्लाम की इशाअत का काम करना है। अल्लाह के रसूल से कहा, इकरा, पढ़ना होगा। अल्लाह के रसूल पढ़े हुए थे? किस मदरसे में आपने दाखिला लिया था? किस यूनिवर्सिटी से आप फारिग थे? कितनी डिग्रियां आपने ली थी? आपने एमए किया था? आप मुफ्ती थे? आप काजी थे? आप मौलवी थे? क्या थे? जोर से बोलिए। अल्लाह के रसूल क्या थे? जोर से बोलिए। उम्मी थे। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी अनपढ़ को बोलते हैं, जो पढ़ा हुआ नहीं है। अरब में उसको उम्मी बोलते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं सीखा हो। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त यही कहा था कि मुझको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फरिश्ते ने सीना को दबाया और कहा कि मसाइल बहुत हैं जिनका सामना आपको करना है, बगैर पढ़े हुए मसला हल नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा। इसलिए हम आमतौर पर जलसों में और खासतौर पर मस्जिद का प्रोग्राम जहां होता है, वहां हम गुजारिश करते हैं कि तालीमे बालिगा का नज्म हो, कुछ नहीं तो कम से कम मारिफुल कुरान का फजर के बाद दर्स हो, और जिक्र का नहीं बल्कि इल्म का हल्का लगना चाहिए। इस तरह की गुजारिश करते हैं। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल भी हुआ है, इसलिए कि पढ़ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में थे, आपको कहा कि नहीं पढ़ना होगा, छोड़ा नहीं गया, पढ़ना होगा। आप इत्मीनान लाना चाहते हैं, और उसी तरह इस गांव के अंदर अगर आप सूद का खात्मा चाहते हैं, झूठ का खात्मा चाहते हैं, चोरी का खात्मा चाहते हैं, सारी चीजों का खात्मा चाहते हैं, नशे से दूर होना चाहते हैं, बुराइयों से दूर होना चाहते हैं, बेहयाई से दूर होना चाहते हैं, ये आपसी इंतशार से बचना चाहते हैं, लोगों की जमीन को नाजायज कब्जा कर रहे हैं, जहेज की लानत से पाक होना चाहते हैं, गीबत से पाक होना चाहते हैं, मुसलमान की चुगली कर रहा है, उसको अपने इस गांव से भगाना चाहते हैं, तो पढ़ना होगा। एक ही लफ्ज में इस्लाह मुआशरा का सबसे बड़ा जलसा ही है कि पढ़ना होगा। और पढ़ना कहाँ से होगा? माँ की गोद से शुरू करना होगा। बल्कि हर वो नौजवान जो अगर ये ख्याल पैदा हुआ है दिल में कि हम शादी करेंगे, तो उस ख्याल को जाहिर करने के लिए और शादी की तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज यही है कि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का हम पर हक है। कुरान ने कहा बच्चे का आप पर हक है, अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह के रसूल के फरमान ने कहा बच्चे का हक है। क्या हक है बच्चे का? बोलिए जोर से, क्या हक है? तालीम और तरबियत। और उसका जिस तरह बीवी का हक है, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, कहा कि तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है। क्या हक है बीवी का? बीवी का काजी साहब पढ़ते हैं ना, निकाह के वक्त कहते हैं ना, जो होशियार किस्म के काजी हैं वो खोल करके बोलते हैं, दैन महर
مہر فاطمی ماں نان نفقہ و سکنا کے آپ کی بیوی بنایا جاتا ہے. آپ نے قبول کیا, منڈی ہلاتا, کہتا ہے منڈی مت ہلاؤ, بولو کہ الحمدللہ میں نے قبول کروا دے گا, الحمدللہ میں نے قبول کیا. تو بیوی کا حق ہے یہ اچھی رہائش کا دینا. اچھا جس کے پاس گھر نہیں ہے, جس کے پاس وہ کھانا خرچہ بھی نہیں ہے, جس کے پاس نان نفقہ سکنا کی ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیا وہ شادی کر لے گا؟ بولیے زور سے آپ لوگ, شادی کرے گا وہ؟ بولیے نا, کیا ہے دماغ میں, کیا ہے شادی کرنا چاہیے؟ آج تو اسلام پر حملہ ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں ہو رہی ہیں, اور یہاں مذہب اسلام کہتا ہے یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ وجاء للنفس. اللہ کے رسول آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نان نفقہ سکنا اور حق زوجیت کی ادائیگی پر اگر قدرت ہے تو شادی کرو, نہیں تو کیا ہے کنوارے رہو اور روزہ رکھو. ایک شادی کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے تعلیم یافتہ جو گھرانہ ہے الحمدللہ اس کے یہاں یہ مزاج ہے کہ میرا بیٹا ابھی روزگار سے نہیں جڑا ہے, روزگار سے اس کو جوڑا جاتا ہے اور اس کے لیے مکان بھی الگ بن جاتا ہے, ہونا چاہیے. ابھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, ایک بچی جو جا رہی ہے اور ان کو جاتے ہی طلاق ہو رہی ہے, مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں لوگوں. اسلام کہتا ہے کہ اگر تم کو نان نفقہ اور سکنا کی قدرت نہیں ہے, شادی کی طاقت نہیں ہے, حق زوجیت کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے, ایسا بھی نوجوان ہے جو نشے سے اندر کھوکھلا ہو چکا ہے, جسم پر چمڑی بچی ہوئی ہے, وہ شخص حق زوجیت کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور اس کا باپ اس کو شادی کراتا ہے, یہ جہنم کا انگارہ بناتا ہے باپ بھی, اور وہ بھی ایندھن بن رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے واقعات آتے ہیں تبھی تو اسلام پر حملہ ہوتا ہے کہ 4 شادی, ایک میاں کے 3 نام, فضلہ, فضلو, فضل الرحمن, اسی طرح 3 شادیاں بھی کر لیتا ہے. آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسلام, قرآن, رسول اللہ کا فرمان اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوشش یہ کیجئے کہ اس چیز کو عام کیجئے کہ دیکھو لوگوں شادی کرو گے تو شادی سے پہلے شادی کی تیاری کرنی ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں نیک بچہ آئے, نیک صالح اولاد, جس کے لیے نبی وقت نے دعا کی ہے, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ, حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اور اولاد نرینہ کے لیے دعا کی کہ وہ وارث ہوگا, اے اللہ اس کو صالح اور نیک بنائیے. تو نیک اولاد کی تیاری کہاں سے ہوگی لوگوں؟ تیاری وہاں سے ہوگی جہاں سے انسان کے ذہن کے اندر شادی کا خیال پیدا ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ وہیں سے اس کی تیاری ہونی چاہیے. آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنكح المرأة لأربع لمالها ولعبادها ولدينها ولحسبها فاصبر بذات الدين تربت يداك. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ آیا. مقدمہ کیا تھا کہ بوڑھا باپ آیا تھا, انہوں نے یہ شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا ہے. بیٹا کو بلایا گیا کہ میرے وقت میں شیطان بھی میرے سائے سے پرہیز کرتا ہے, یہ کون سا شیطان ہے جو بیٹی کی شکل میں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, بلاؤ. پولیس بھیجا, پولیس پکڑ کے لائی. بیٹا کہا کہ باپ ہمارے والد صاحب کی شکایت بجا ہے, حق ہے اور سچ ہے, مجھ سے جو ہے یہ ان کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. لیکن امیر المومنین, میں ایک سوال یہ کرتا ہوں, کیا بچے کا باپ کا ہی حق بچے پر ہے, بیٹے پر ہے, یا بیٹے کا بھی حق باپ پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلا حق تو بیٹے کا ہے, والدین کا حق ہے. والدین کا حق نہیں, بیٹے کا حق ہے, والد پر ہے. کہا کہ میں اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہوں, لیکن
एक बच्चे के क्या हक है, मतलब कि जिस आदमी के जहन के अंदर सबसे पहला हक ये है कि उसको अगर शादी का ख्याल आया तो शादी करना है, बाल बच्चा अगर नेक चाहिए तो नेक और दीनदार घराने में उसको शादी करनी है और उससे होने वाली औलाद का नाम बढ़िया रखना है और उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना है। 3 हुकूक बतला है। क्या 3 हुकूक बतला है? जोर से बोलिए। दीनदारी को तरजीह दे शादी में, दीनदार घराने में शादी होनी चाहिए। दूसरा हक क्या है? उसका अच्छा नाम रखा जाए। और तीसरा हक क्या है? उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए। जैसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों को इंतकाल के वक्त बुलाया था, कहा कि कुरान पढ़ाया, कहा हलाल हराम बतलाया, कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बतलाया। ए अल्लाह गवाह रहिएगा, ये बच्चे कह रहे हैं मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली। एक बात की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको कार लेके दे और उनको घर बना करके दे, बल्कि बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम ये फर्ज है। अगर नहीं बनाया है, नहीं बताया है तो उसकी पकड़ होगी, उसके कदम नहीं उठ सकेंगे जब तक इस सवाल का जवाब नहीं देगा, और वो बाप की गरीबान पकड़ करके फरिश्ते उसको जहन्नम का ईंधन बनाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो दीनदार घराने में शादी करनी है। आज तो च्वाइस बदल गई लोगों की। लड़की गोरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गोरी होनी चाहिए, और वो लगे तो हीरोइन की तरह लगे। उसको यानी अरे वो क्या बोलते हैं उसको, दुपट्टा सर पे नहीं होना चाहिए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, जिससे संभला न गया अपने सर का आंचल, उससे क्या खाक हिफाजत तेरे घर की होगी। घर वाली खाना आबादी बनाने के लिए ले जा रहा है। अरे ये अपने दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती है, तेरे घर की हिफाजत कैसे करेगी? आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस चीज को देखते थे, और इनकलाब जो आया, दीन आया, और दीन के अंदर दीनदार घराना आया, और वो माँ जो दीनदार घराने से जो खातून या लड़की ताल्लुक नहीं रखती है तो उसकी गोद भी पाक नहीं हो सकती है और दीनदार गोद नहीं हो सकती। कहा कि बच्चा पढ़ेगा कहां से कहां तक पढ़ेगा? माँ की गोद से लेके शुरू करेगा। तो पहले मदरसे में अगर उसका मामला गड़बड़ चला तो खिश्त अव्वल चून निहत में मार कच तासुरैया मीर अव्वल दीवार कच। पहली ईंट अगर कोई मिस्त्री आपको टेढ़ी रख दे, वो दीवार कभी सीधी नहीं हो सकती है, आसमान तक ले जाके वो दीवार टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए गोद की हिफाजत, और पहले मदरसे में जिसमें एडमिशन अपने बच्चे को दिलाना है लोगों, उस मदरसे की फिक्र करो। उस मदरसे को इस्लाम का गहवारा और इस्लामी मदरसा पहले बनाना है। उसके लिए कहां से कोशिश करनी होगी, देखना होगा कि वो दीनदार घराने से ताल्लुक रखती है कि नहीं रखती है, उसको अल्लाह के रसूल का नाम मालूम है कि नहीं है, उसको आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मालूम है कि नहीं है, उसको अम्माजान हजरत आयशा की सीरत मालूम है कि नहीं है, उनको अम्माजान हजरत खदीजा की सुन्नत मालूम है कि नहीं है, उसको हलाल जानती है कि नहीं जानती है, हराम जानती है कि नहीं जानती है, उसको ये पता है कि नहीं पता कि जेवर सबसे कीमती जेवर इल्म का जेवर है, तालीम का जेवर है, ये चांदी का पायल और ये गोल्ड का की नथिया, इसी को जेवर वो समझ रही है। उसको अगर ये मालूम नहीं है तो वो निकाह में आने के लायक नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दूध वाली की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता किया, और उसी खानवादे से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं और पूरे मुल्क का नक्शा बदल देते हैं। सुन्नत और शरीयत की हिफाजत और इशाअत का ऐसा मंजर दुनिया देखती है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का खिलाफत बनु उमैया के बीच में है, लेकिन उनको भी खलीफा राशिद का लक़ब मिलता है। हम सुखन कर दिया बंदे को खुदा से तूने, ये ऐसा मर्द पैदा हुआ, ये उसी नस्ल में है जिस नस्ल में वो दूध वाली औरत है, उसकी बेटी जिसने मना किया था कि अम्मा कोई नहीं देखता है लेकिन खुदा तो देखता है, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। उन्होंने माँ से झगड़ा किया, माँ की हर बात मान लीजिएगा आप,
बाप की हर बात मान लीजिएगा, इसलिए कि अब्बा है। इमाम साहब 5 रकत नमाज पढ़े, मान लीजिएगा 4 रकत के बाद जो है इमाम साहब फिर खड़े हो गए 5वीं रकत के लिए, आप मान लीजिएगा इमाम है तो क्या हुआ, लिखा हुआ है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। यहाँ 4 रकात नमाज अल्लाह ने फर्ज की थी, इमाम 5 रकत पढ़ाने लगा है, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तरीके से उनको बोलना है, जैसे 5 रकत में अगर कोई खड़ा हो जाए इमाम, क्या कहिएगा, सुभान अल्लाह कहना है तरीके से ताकि वो बैठ जाए। लेकिन यहाँ सब कोई खड़ा हो जाता है, तब बाद में कहता है कोई मौलवी साहब कहाँ बोला, लुकमा कहाँ न दिया। मौलवी साहब नहीं, मौलवी साहब को तो मालूम है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हर बात वालिदैन की भी नहीं मानी जा सकती है। साहिबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तरबियत फरमाई थी कि बहुत सारे मौके पर वो ये सवाल करते थे, अल्लाह के रसूल आपका ये हुक्म है या आपका मशवरा है। अल्लाह के रसूल कहते थे मशवरा है, तो कहा कि फिर तो मशवरे को मैं नहीं मानने पर इख्तियार रखती हूं। एक मसला, हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो बांदी थी और लौंडी थी, और हजरत मुगीस रजी अल्लाह ताला ये गुलाम थे, ये निकाह में थे, लेकिन हजरत बरीरा आजाद हो गई। और इस्लाम कहता है अगर किसी गुलाम के निकाह में कोई खातून है जो लौंडी है लेकिन वो आजाद हो गई है, तो उसको इख्तियार है या तो उसके निकाह में रहे या अपने निकाह से निकलने का ऐलान कर दे। हजरत मुगीस मदीने की गलियों में रोते फिरते थे कि बरीरा हमसे जुदा हो रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बरीरा देखो तुम्हारी मोहब्बत में मुगीस किस तरह रोते फिरते हैं और तुमसे किस तरह ताल्लुक का इजहार करते हैं। तो हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा आपका हुक्म है या मशवरा। कहा कि नहीं मेरा मशवरा है, हुक्म तो नहीं है, दीन तो वही कहता है, तुमको इख्तियार दिया है, तुमको हक दिया है। कहा तो फिर मैं आपके मशवरे को नहीं मानूंगा, वो निकाह से बाहर होने का ऐलान करें। कहिए सुभान अल्लाह। ये इस्लाम जुर्अत सिखाता है, अपने वालिद की भी, अपने वालिदैन की भी उस शक्ल में, जबकि वो मासियत की तरफ अगर बुला रहे हैं कि नहीं बच्चा जहेज लेना है, रुपया लेना है, हम भी तो दिए हैं, सब वसूल करना है। 4 बच्चियों को दिए हैं, अब तुमको 4 बच्ची को जो दिए हैं, तू अकेला बेटा है, 4 बच्ची का हिस्सा वसूल करना है। वहां पे आपके लिए है कि आप अच्छे तरीके से कह दीजिए कि नहीं, इसकी इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, हम दूसरे के मोहताज नहीं होना चाहते हैं। और वहां पे तो कहता है कुरान और खुद जो है कि अल्लाह से डरना है। शादी के मौके पे जो खुतबा होता है, शादी के मौके पे खुतबा में यही बात कही जाती है, तीनों आयतों के अंदर बार बार इत्तकुल्लाह या जो है नासु तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन, लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाले का मामला ये है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अरे रोजी से डर रहे हो, तुम्हारे जेब में उसके खाने और खर्चे के भी पैसे अल्लाह डालने वाला है। तू अल्लाह से डरना है, तकवा इख्तियार करना है। तू तकवा वाली जिंदगी अगर गुजारने का अज़्म करता है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरसात करता है, रिज़्क़ की बारिश कर देता है। और देखिएगा जो लोग दूसरे से अगर लिए हैं उसका अंजाम है कि हमेशा रोते हैं और भी फकीर वाली जिंदगी, मोहताजी वाली जिंदगी गुजारते हैं। वक्त हो गया हमारा। अच्छा, तो हजरात आइए इसका अज़्म करते हैं जामिया इस्लामिया की बनात के स्टेज से कि हमारी बच्चियां, उनकी गोद इस्लामी गोद होगी इंशाअल्लाह। इसी के लिए ये इदारा खोला गया है। और हदीस में आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि लोगों बच्चियों की तालीम पर ज्यादा हदीस शरीफ के अंदर तवज्जो दी गई है। और इस तरह की बिशारत भी है कि एक बच्ची की तालीम की जिम्मेदारी उठाने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और बच्चे और बच्ची में फर्क करने वाला जो नहीं है वो बाप के बारे में बिशारत है कि जन्नत में जाएगा। वो एक समाज बनता है, एक
बच्चा पढ़ता है, फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, बच्ची पढ़ी, खानदान पढ़ता है। और सबसे पहले मदरसा, वो मदरसा उसकी गोद इस्लामी और ईमानी गोद बन जाती है। इसीलिए बच्चों की तालीम पे आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई बच्चों को, अपने औलाद को बेहतरीन तोहफा दो। ये घर बना के देना फर्ज नहीं है, उनको 50 बीघा जमीन देना फर्ज नहीं है। कहा है उसकी तालीम का इंतजाम करो, तरबियत का इंतजाम करो। लेकिन जहाँ बच्चे का मसला है, अल्लाह के रसूल आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, और वो ऐलान आज इस जामिया इस्लामिया लिल बनात घोड़ा घाट के इस स्टेज से ये नाचीज मुंतकिल कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। मन कानत लहू उनसा फलन यइदहा वलन उसिर वलदहु अलैहा अदखलहु अल्लाहुल जन्नह। आका मदनी कह रहे हैं, जन्नत में जाना है किसी बात को अपनी जिम्मेदारी से सुलूक-दोष होना है किसी वालिदैन को, किसी वालिद को, तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि अपने बच्चे और बच्ची में तफरीक ना करे। बच्चे को तो पढ़ा रहा है, मज़ाहिब में भेज दिया, दारुल नदवतुल उलमा भेज दिया, देवबंद भेजा, जामिया मिल्लिया भेजा, अलीगढ़ भेजा, लेकिन बच्चे को बर्तन मांजने में लगाया है। ये बाप नहीं है, ये पाप है, ये बाप नहीं है, जालिम है। तो लेकिन राइट व मसऊलुन अन रइयती, इसके बारे में इससे सवाल होगा कि तुमने ये फर्क क्यों किया। ये तो बहैसियत औलाद दोनों एक ही है। बच्चे में भी फर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, एक बच्चे को आपने जमीन दे दिया और दूसरे बच्चे को आपने कुछ नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक वाकया आया, हजरत नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत बशीर रजी अल्लाह अन्हु दे रहे थे, अल्लाह के रसूल को गवाह बनाने के लिए गए, ये छोटा है इसीलिए इसके 4 बीघा जमीन 4 बाग इसी के नाम कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जुल्म है और नबी जुल्म पर गवाह नहीं हो सकता है। उसी तरह एक बाप बच्चे के लिए उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है और बच्ची के लिए उसको महरूम कर देता है, उनको हलाल हराम नहीं सिखलाया है, उसकी गोद इस्लामी कैसे होगी, समाज में इनकलाब कैसे आएगा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत कैसे मुंतकिल होगी, अम्मा जान हजरत आयशा की सीरत कैसे जिंदा होगी, हजरत खदीजा की सुन्नत कैसे जिंदा होगी। इसका तरीका रास्ता तो इन्होंने बंद किया है। ये बाप नहीं, जालिम है, ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा और खुद को ईंधन बना लिया है जहन्नम का। वो बच्चों को भी जहन्नम का ईंधन बनाया है। ये बच्चे जो जहन्नम में जाएंगे, इसी वजह से बाप को भी जहन्नम में अंगारे की तरफ फेंक दिया जाएगा और उसी से जहन्नम की आग बचाई जाएगी। अल्लाह, इसीलिए अज़्म लीजिए कि हम इन बच्चों की तालीम तरबियत का इंतजाम करेंगे और तफरीक नहीं करेंगे। अलग अलग चश्मा, बेटे के लिए अलग चश्मा नहीं लगाएंगे, अलग नजर से नहीं देखेंगे, बेटी को अलग नजर से नहीं देखेंगे। ये बेटी ये चली जाएगी, पराया चीज है, ये बेटा तो हमारे यहाँ रहेगा। अरे बेटी जा रही है, वो दावत के लिए जा रही है, आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुंतकिल करने के लिए जा रही है। इन लोगों, जिंदगी तो मोमिन की मौत के बाद शुरू होती है और उस जिंदगी के लिए तुमने क्या किया है, इन बच्चों को दाइया बनाने की जरूरत है। लोगों, इनको हजरत जाबिर की अहलिया जैसी सिफत अता करो और ये चीज तालीम से आएगी। अम्मा जान जैसी सीरत अता करो, ये चीज तालीम से आएगी। हजरत खदीजा की बसीरत अता करो, ये चीज तालीम से आएगी। हजरत जाबिर की अहलिया का वाकया याद है। आज औरतें, खातून अपने बच्चों को बुज़दिल बना रही है, अपने शौहरों को बकरा और जानवरों की संग में लाकर खड़ा कर देती है, इसलिए कि उन औरतों ने अपने शौहर की कदर नहीं जानी, अपनी औलाद की ताकत को नहीं समझी। ईमान बदाली पैदा करना था उनको, लेकिन ये देखिए चोर में चक्के पैदा कर रही है। दरअसल वजह यही है कि उन्होंने अपनी हैसियत को, हकीकत को नहीं समझा। इस्लाम ने उनके कदमों में जन्नत रखा है, वो जन्नत की चीज है और जन्नत का सामान है, सबसे खैर और सबसे बेहतरीन सामान है वो। अल्लाह के रसूल ने उनकी सलाहियत का इतराफ किया है, सहाबा ने इतराफ किया है, खुद आका मदनी को तसल्ली मिली है तो अम्मा जान हजरत खदीजा से मिली है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेहतरीन जेवर, आपने नबूवत का इल्म आधा मुंतकिल किया और ये हमारी माओ के जरिए आज तक पूरी दुनिया में फैल रहा है। हजरत जाबिर की अहलिया का वाकया
اے لوگوں اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ان کے اس بچے کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے اس بچے کے انتقال پہ واویلا نہیں مچایا، اپنے شوہر کا استقبال کیا، ان کو سلام کیا، وہ گھر سے باہر تھے اور وہ بچہ کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے، ان کو کھانا وانا کھلانے کے بعد ان سے یہ بات کرتی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کسی کی امانت ہو تو اس امانت کو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس امانت کو اس کے حوالے، امانت والے کے حوالے کر دینا ہے۔ تو کہا کہ وہ کفن میں لپٹا ہوا 6 سال کا تیرا بیٹا ہے جو بخار میں مبتلا تھا، تیرے غائبانے میں انتقال ہوا ہے، میں نے اس کو نہلا دیا ہے، لے جاؤ اس امانت کو حوالے کرو۔ امانت والے کی جو اللہ نے دیا ہے انہوں نے بلا لیا ہے، ان کے حوالے کرو۔ یہ سبحان اللہ، یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے ذریعے سے یہ چیز منتقل ہوئی ہے۔ آج عزم لیجئے کہ اس ادارے کے لیے ہم لوگ جانی مالی قربانی کریں گے، کریں گے نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ یہ جلسہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس گھوڑا گھاٹ سے اماں جان حضرت عائشہ کی سیرت کو عام کیا جائے اور آقا